चलो बच्चों, वेलकम। शुरू करते हैं सेकंड वीडियो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। जो हम लोग फर्स्ट वीडियो में कहाँ पे छोड़े थे? हम लोग छोड़े थे और माउथ जो बकल कैविटी है वहाँ पे, और दो स्ट्रक्चर हम लोग का बाकी था। एक है तुम्हारा टीथ और दूसरा है टंग। चलो शुरू करते हैं। टीथ, मैमलियन टीथ और ह्यूमन टीथ। ह्यूमन दिस टूथ, दिस इज a picture of the human tooth. Basically this one is the picture of canine tooth. Okay, so if you see the tooth, this is the structure, and here you will find three parts of the tooth. This tooth has three parts. This visible portion of the tooth is called as, you can call it as head, or you can call it as crown. This is the crown or the head of the tooth which is visible. Then the portion which is just nearer to this gum, or the portion where the tooth is just embedded into the gum, that portion is called as, this portion is neck. And the rest of the portion is called as root, which is not visible to us. It is just embedded inside the gum and attached to the bone through the gum. So these are the portion of the teeth. Mammalian teeth, particularly in our teeth is ectomesodermal in origin. You know, many organs are developed from basically from three germ layers. I have already studied in animal kingdom. Okay, like ectoderm, mesoderm and endoderm. There are some structures that develop from the ectoderm, like skin, nervous system. There are some structures that develop from mesoderm, like bones, muscles, some portion of the teeth, and there are some portion developed from the endoderm. So this teeth is basically developed, it is ectomesodermal, because this enamel, this one is only developed from the ectoderm, and the dentine, the whole part of the teeth, is developed from the mesoderm. So this is developed from the mesoderm. That's why we call it as ectomesodermal origin. Okay, see, so this crown, this visible portion of the teeth crown, is very shiny white in color. So basically the teeth is covered by a cap like structure, or it is a structure which is a very hardest structure, that is called as enamel. So this enamel, you can just remember, this is a very good question for your competitive exams. This is the hardest structure of body. इवन बोन से भी ज़्यादा हार्ड है ये। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो एनामेल होता है। एंड एनामेल का नीचे देखना जो है, दिस इज डेंटाइन मेड अप ऑफ ओडोंटोसाइट सेल्स. दिस डेंटाइन इज मेड अप ऑफ ओडोंटोसाइट सेल. मेन बॉडी ऑफ द टूथ इज डेंटाइन, और द मेजर चंक ऑफ द टूथ इज मेड अप ऑफ डेंटाइन. Then inside this dentine there is a cavity. You can just see this is a cavity. And this cavity which is found inside the teeth or tooth is called as the pulp cavity. Just remember, this is called as pulp cavity. So this pulp cavity, it contains blood vessels, nerve fibers, some cells, because you know teeth is not this tooth is not a dead structure. It's a living structure. So it needs blood supply because it needs nutrients. It needs nerve supply. Okay, so nerve supply, blood supply, all are there through this pulp cavity. Okay, and the pulp cavity also contains two type of cells, like ameloblast cell and odontoblast cells. Ameloblast cell, they give rise to this enamel, and odontoblast cell, they give rise to the dentine. Means ameloblast cell give rise to the enamel, or enamel is formed from the ameloblast cell,
and dentine formed from the odontoblast cells. Very important. From entrance point of view, you just I am writing here important V important. What? Now amyloblast give rise to enamel and odontoblast give rise to dentine. Okay, these are the precursor cells of this enamel and dentine. Okay, now this pulp cavity is connected, pulp cavity is having a canal that is called root canal. Through this canal, the content of the pulp cavity like the blood vessels and the nerve fibers, they will go out of this pulp cavity. This is the root canal, and finally this canal is called the apical foramen. Finally, the foramen, the opening through which the blood vessel and the nerve fibers come out of the root, is called as apical foramen. And the root teeth you just see here, the teeth is embedded in a jaw. Our teeth are not directly attached to the bone. So, our teeth are embedded in a muscular, that is muscular gum. So, that is why our teeth is thecodont type of teeth. Okay. So, this is attached to the gum, and in the gum is there, and just below the gum there is a bone to which the teeth is attached, that is called alveolar bone. Alveolar bone, above that there is a gum, and above that the teeth is attached, and this alveolar bone attached to the teeth through some ligaments. They are called as periodontal ligaments. So, these are the ligaments which are called as periodontal ligaments. They attach the alveolar bone and the teeth, and the teeth is fixed inside the gum. Okay. So, this is the structure of our tooth. So, many questions can be framed from this tooth, and it also came in the past many questions from this anatomy of the teeth or tooth, and also some questions from the dentition, okay, or dental formula. See, so our tooth is basically, I just give you a comparison. Our tooth, suppose this human tooth is basically thecodont type. Our tooth is thecodont type. Why it is called thecodont? Because the teeth is attached to the gum, not directly to the bone, or you can use a better word here, embedded. The teeth is embedded in the gum, embedded in the gum, not directly to the bone. So, this type of teeth is called thecodont, which is found in the mammals. So, this type of teeth is found in the mammals, and there is an exception, that is crocodile also. Crocodile being a reptile, it has got thecodont teeth. Reptiles basically they bear a different, that is a pleurodont type of teeth, or it is a acrodont type of teeth. But crocodile is a reptile which also bear thecodont type of teeth. Means this thecodont type of teeth is basically found in mammals. That is a character of mammals. And we are mammals, so ours have also having thecodont type of teeth, but there are some reptiles also they bear thecodont type of teeth, that is crocodile, and also there were dinosaurs also. When dinosaurs are there, they are also bearing thecodont type of teeth. Okay. In contrast to thecodont, if we see it is a thecodont, so in contrast to thecodont, if we see there is another type of teeth that is called as acrodont, because this is not our cup of tea, but still we need to know this acrodont, because if something is thecodont, then in contrast some contrasting things should be there, and the contrasting thing is acrodont. And whom we call acrodont, what type of teeth we call acrodont? Now here the teeth are directly attached to the bone.
there is no gum. So this type of teeth is called as acrodont. कहाँ पे मिलता है ये? This type of teeth is found in amphibians and some reptiles also and fishes also. Some reptiles and fishes. ये हो गया acrodont. Then another type of contrasting thing is there in terms of this thecodont, that is called pleurodont. Pleurodont. Where you find the pleurodont type of teeth? Pleurodont type of teeth means it is half attached to bone and half attached to, I mean to say, some ligamentous structures. It's like gums, because gums are attached through ligaments. No? Gums, ligaments, then teeth. This type of means it is a in between of thecodont and acrodont. Pleurodont is a in between of thecodont and acrodont, and this type of teeth is found in, ये यूजुअली मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में मिलता है ये वाला टीथ. ये प्लूरोडोंट जो है मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में मिलता है. तो हमारा टीथ का कैरेक्टर क्या हो गया? आवर टीथ कैरेक्टर इज thecodont. This is thecodont. It is not acrodont. It is not pleurodont. It is not acrodont. It is not pleurodont. It is thecodont. But we are writing acrodont and pleurodont so that you know the contrasting character. Means ये अगर thecodont होता है उसका उल्टा क्या होता है, उसका अगला क्या कैरेक्टर होता है. सो ये acrodont होता है और pleurodont होता है. दूसरा हमारा टीथ का जो कैरेक्टर है क्या है? दूसरा जो कैरेक्टर है हमारा टीथ का, ये हो गया आपका डाइफायोडोंट एंड मोनोफायोडोंट. डाइफायोडोंट टीथ जो हमारा होता है लाइफ में 2 बार आता है. ये लाइफ में 2 बार आता है. तो ये क्या होता है? इट कम्स ट्वाइस इन लाइफ टाइम. ये जो मोनोफायोडोंट है ये इट कम्स वंस इन लाइफ टाइम. इसका मतलब 2 बार आता है कुछ टीथ हमारा जो है वो 1 बार आता है लाइफ में. 2 बार जो आता है वो टीथ कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा इंसीजर, ये 2 बार आता है. कैनाइन्स, ये 2 बार आता है. एंड फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर, याद रखना, पहला और दूसरा मोलर जो है ये भी 2 बार आता है. बाकी जो है जैसे कि पूरा दोनों प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर, ये लाइफ में 1 बार आता है. मतलब हमारा जो मिल्क सेट है, मिल्क सेट में ये टीथ नहीं होते हैं. मिल्क सेट में खाली यही टीथ होते हैं. तो ये 2 बार आता है. एक बार मिल्क सेट में आता है, एक एडल्ट सेट में आता है. ये खाली हमारा एडल्ट सेट में आता है, मिल्क सेट में नहीं आता है. सो हमारा डाइफायोडोंट. अगर इन कंट्रास्ट अगर हम देखेंगे, ये अगर डाइफायोडोंट होता है तो इन कंट्रास्ट अगर अगला अदर एनिमल का देखेंगे क्या होता है? पोलीफायोडोंट. मतलब they can form many times in lifetime. एक इंडिविजुअल का लाइफ टाइम में बहुत बार हो सकता है ये. जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, इवन रेप्टाइल्स हो गया. जो क्रोकोडाइल तुम्हारा थेकोडोंट है लेकिन वो भी पोलीफायोडोंट है. क्रोकोडाइल को तो एक्सेप्शन थेकोडोंट है, पर स्टिल वो थेकोडोंट होते हुए भी ये पोलीफायोडोंट है. बाकी जो जितना सब एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट टाइप का टीथ होते हैं वो सब क्या होते हैं? पोलीफायोडोंट होते हैं. ठीक है ना. ये हो गया हमारा कितना टाइम हमारा टीथ आएगा. ये हो गया क्या? थेकोडोंट, डाइफायोडोंट, ये हो गया एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड पोलीफायोडोंट. नीचे और जगह है क्या? अरे तो नहीं दिख रहा है. हाँ, पोलीफायोडोंट. अच्छा, ओके, अभी थोड़ा ऊपर लिखेंगे. तो ये हो गया, मतलब यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है. ये पोलीफायोडोंट मतलब दे फॉर्म मेनी टाइम्स इन लाइफ टाइम लाइक फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स. और इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ये छुप जा रहा है नीचे. ये पोलीफायोडोंट को मैं इधर लिख देता हूँ,
ये नीचे वाला लाइन जो है वो नहीं दिख रहा है। दे फॉर्म मेनी टाइम्स इन लाइफ टाइम। एग्जाम्पल क्या है इसका? फिशेस, एम्फीबियंस, ये होता है पोलीफायरडन। तो ये एग्जाम्पल क्या होता है? पोलीफायरडन का एग्जाम्पल क्या होता है? फिशेस एंड एम्फीबियंस। ठीक है, ये एक कैटेगरी हो गया। और एक कैटेगरी हम लोग का टीथ में है, ये 1, 2 हो गया। और एक हम लोग तीसरा कैटेगरी एक लिख लेते हैं यहाँ पे। तीसरा कैटेगरी ये ऊपर लिख लेते हैं। तीसरा कैटेगरी में क्या? अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। ये काम हो गया अभी हम लोग का अमीलोब्लास्ट एंड ओडोनोब्लास्ट। मैं इसको अभी मिटा देता हूँ। यहाँ पे तीसरा कैटेगरी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये हार्ड स्ट्रक्चर ये जो है ये तो आप समझ गए। अभी मैं मिटा देता हूँ इसको। अच्छा, तीसरा कैटेगरी में क्या हो गया? तीसरा कैटेगरी में हो गया हम लोग का क्या है ना? इट इज हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट इसका मतलब ये जो टीथ है ये सारे टीथ एक जैसा नहीं होते हैं हम लोग का। सो आवर टीथ आर डिफरेंट टीथ हैविंग डिफरेंट पर्पज। जैसे कुछ टीथ होता है कटिंग के लिए, कुछ बाइटिंग के लिए होता है, कुछ टीयरिंग के लिए होता है, कुछ ग्राइंडिंग के लिए होता है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट, that is heterodont. Example, incisor or incisor, canine, premolar and molar. There are 4 kind of teeth. But in contrast, if you see other animals or these type of animals, you will find homodont type of teeth, homodont or isodont type of teeth. Means all teeth are similar. You can see frog, the similar line of teeth are there. They are called as maxillary teeth. The maxilla bone contains a single line of similar type of teeth. So frog, even snakes, all these reptiles, they have got isodont type of teeth or homodont type of teeth. Means all teeth are similar. All teeth are similar. An example is again frog, reptiles, fishes, etc. तो ये हो गया बाबू हम लोग का क्या ना टीथ का जो डिफरेंट टाइप का जो टीथ है। ठीक है, थोड़ा सा उसको देखो क्या क्या हम लोग बात किए ना। हम लोग बात किए तुम्हारा थिकोडोंट के बारे में बात किए, डाइफायोडोंट और मोनोफायोडोंट के बारे में बात किए, फिर हम लोग बात किए हेटेरोडोंट के बारे में बात किए। और इसका जो कंट्रास्टिंग जो है वो भी हम लोग डिस्कस किए, उसका कंट्रास्टिंग क्या होना चाहिए। थोड़ा सा मेरा पेन में इंक डाल देता हूँ, अब देखते रहो उसको। जस्ट गिव मी 2 मिनट। ओके, सो ये हो गया डिफरेंट टाइप, मोनोफायोडोंट, क्या बोलते हैं, डाइफायोडोंट, मोनोफायोडोंट, थिकोडोंट एंड हेटेरोडोंट। अभी हम लोग देखते हैं और कुछ इसके बारे में देखते हैं। क्या देखेंगे ना, ये जो टाइप्स अभी हम लोग देखें, हमारा जो चारों तरह का 4 टाइप का टीथ देखे, ये जो टीथ होते हैं कैसे होते हैं देखना। ये जो इंसीजर होता है बेसिकली, ये इंसाइजर और इंसीजर होता है जो ये क्या होता है ना, ये जैसे क्या बोलते हैं, जैसे ये कटिंग टीथ होता है, शार्प कटिंग टीथ होता है, मतलब काटने के लिए। सो ये दीज आर कटिंग टीथ। एंड ये जो होता है ना, ये इस तरह का तुमको दिखेगा, जैसे देखो इस तरह का दिखेगा पूरा यार, एक ही रूट उसका रहता है, एक रूट रहता है उसका। ये पूरा काटने के लिए, ये जैसे ब्लेड जैसा उसका जो धार रहेगा, ये काटने के लिए हेल्प करेगा। सो इसको बोलते हैं हम लोग कटिंग टीथ बोलते हैं इंसीजर को। फिर हम लोग का होता है कैनाइन, और एक टाइप का टीथ होता है, इसको हम लोग बोलेंगे कैनाइन। ये कैनाइन जो होता है ये बेसिकली टीयरिंग टाइप का टीथ होता है। टीयरिंग, ये तोड़ने, मतलब क्या बोलते हैं, टीयर करने के लिए, मतलब समझ रहे हो ना, टीयर करने के लिए मतलब इसको कोई अगर जैसे कार्निवर एनिमल होता है ना,
मांस वगैरह खाने के लिए जो टीयर करता है उसको, उसके लिए काम आता है। सो ये टीयरिंग टीथ है। तो दिस इज टीयरिंग, इट हेल्प इन टीयरिंग। ये तुम्हारा पॉइंटेड टीथ रहेगा, जैसे वो टीथ हम लोग का डायग्राम किए है, ये ऐसे पॉइंटेड टीथ रहेगा, ये पॉइंटेड टीथ रहेगा पूरा। ये भी सिंगल रूट वाला, ये सिंगल रूट टीथ है। फिर हम लोग आता है एक प्रीमोलर। ये जो प्रीमोलर है बेसिकली, ये प्रीमोलर क्या है आपका, नहीं ये ग्राइंडिंग टीथ है। एंड इसमें एक प्लेटफॉर्म रहेगा, इसमें एक प्लेटफॉर्म रहेगा। देखो जैसे कि देखो ऐसे ऐसा एक टीथ हुआ, इसमें एक कुछ प्लेटफॉर्म रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ ग्राइंड कर सके, जहाँ पे फूड ग्राइंड होता है, ये प्लेटफॉर्म रहेगा। एंड ये भी क्या होता है, सिंगल रूट वाला होता है और डबल रूट भी होता है। ये जो प्रीमोलर होता है ये सिंगल रूट भी होता है, डबल रूट भी होता है। फिर होता है हम लोग का मोलर। मोलर भी ग्राइंडिंग टीथ होता है एंड सिमिलर इसी तरह का होता है। प्रीमोलर जैसे मोलर भी वैसे ही है, ग्राइंडिंग टीथ। अभी देखना ये जो इंसिजर है इसमें वन रूट होता है, वन रूट, एक रूट होता है, ऐसे एक रूट कैनाल इस तरह का होता है। कैनाइन में देखना ये भी वन रूट होता है। प्रीमोलर में लेकिन खाली पहला प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर जो होता है वो टू रूट होता है। मतलब टू रूट मतलब इस तरह दो रूट रहेगा। एंड बाकी सब जो रेस्ट होता है जो वन रूट, रेस्ट वन रूट होता है। याद रखना, ये भी कभी कभी पूछता है, पहला वाला में वन रूट रहता है, दो रूट रहता है, बाकी में वन वन रूट रहता है। मोलर में ऐसा देखना, मोलर में जो है ये क्या होता है, ये फर्स्ट मोलर, ऑल जो अपर मोलर है, अपर मोलर इसको बोलते हैं। कभी कभी इसको मैक्सिलरी मोलर भी बोल देता है, क्योंकि ऊपर वाला बोन जो है टीथ का जो अटैच होता है वो मैक्सिलरी बोन होता है, नीचे वाला बोन जो होता है मैंडिबुलर बोन होता है। तो पूछ लेगा अपर मोलर या मैक्सिलरी मोलर का कितना रूट है, तो मैक्सिलरी मोलर का 3 रूट है। सारे मैक्सिलरी मोलर का 3 रूट्स है। जैसे कि मतलब ये टीथ हो गया 1 2 3, इस तरह का रूट है, 3 रूट्स। रेस्ट जो है मतलब मैंडिबुलर मोलर जो है, जो नीचे वाला जॉ में रहता है, ये 2 रूट है। एंड ये जो फास्ट प्रीमोलर जो है, फास्ट मैक्सिलरी प्रीमोलर, ये वाला अपर जॉ का पहला प्रीमोलर जो है वो 2 रूट होता है। बाकी सारे मैंडिबुलर सारे प्रीमोलर, रेस्ट ऑफ द प्रीमोलर वो सिंगल रूट्स होते हैं। तो ये हो गया 1 रूट, 2 रूट और 3 रूट किस किस का होता है, इस तरह का ये डिफ्रेंशिएशन हो गया टीथ का। सो ये हो गया हम लोग का टीथ का डिफ्रेंशिएशन। अच्छा, अभी इसका और एक चीज़ देखेंगे हम लोग। ये जो टीथ है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ पढ़ेंगे, वो हो गया हमारा डेंटल फॉर्मूला। चलो यहाँ पे अभी टाइम मतलब नहीं दिखेगा, इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग डेंटल फॉर्मूला पढ़ते हैं। चलो ये हो गया। अभी इसको रब करते हैं और इसमें हम लोग डेंटल फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये हमारा टीथ का टाइप्स हो गया, किस तरह का टीथ हम में है, किस तरह का टीथ हम में नहीं है, और हमारा जो कंट्रास्टिंग टीथ किस तरह से वो पढ़ लिए। अभी कौन सा टीथ हम लोग है वो भी पढ़ लिए। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर क्या होता है, काटने वाला टीथ होता है, कटिंग। ये टीयरिंग वाला, तोड़ने वाला टीथ होता है, टीयरिंग। कैनाइन जो है, और प्रीमोलर जो है ग्राइंडिंग होता है, मोलर जो होता है ग्राइंडिंग होता है। इसलिए एक चीज़ ये भी देखना, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, इंसिजर टीथ किसका हाईली डेवलप होता है। इंसिजर टीथ सबसे डेवलप होता है किसका बोलो, रूमिनेट्स का। क्योंकि रूमिनेट्स क्या करते हैं, काटते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं ना, उसको काटने के लिए उनको चाहिए होता है। तो उनका क्या होता है, रूमिनेट्स का क्या होता है, हाईली डेवलप्ड इंसिजर होता है। और रूमिनेट्स को छोड़ के एक जो माउस होता है, माउस का भी इंसिजर जो होता है बहुत हाईली डेवलप होता है। तो ये इंसिजर जो होता है माउस का भी डेवलप होता है। और ये इंसिजर क्या होता है, एलिफेंट का भी डेवलप होता है। जो एलिफेंट का जो टस्क है ना, वो भी कभी पूछ लेता है, एलिफेंट का टस्क क्या है। एलिफेंट का जो टस्क जो हमको दिख रहा है बाहर, बोलते हैं ना हाथी का दांत एक दिखाने का और एक खाने का। जो हाथी का दांत जो खाने का है वो मोलर है, प्रीमोलर है। लेकिन हाथी का दांत जो दिखाने का है, जो दिख रहा है बाहर हम लोग को, जो बहुत कॉस्टली है, जो हाथी का दांत, वो क्या है, इंसिजर। इट इज़ अ मॉडिफाइड इंसिजर। जो टस्क होता है वो मॉडिफाइड इंसिजर होता है। एंड ये इंसिजर चूहा का भी बहुत अच्छा डेवलप करता है। अगर एक चूहा को कुछ दिन अगर हम लोग उसको बंद करके रख दिए, मतलब एक जगह में रख दिए, तो इंसिजर उतना डेवलप होगा, उसका माउथ पूरा परमानेंटली ओपन हो जाएगा। अभी चूहा हमारा काटता है, कपड़ा काटता है, हमारा डिफरेंट बिलोंगिंग्स को काटता है, हम लोग गुस्सा करते हैं कि क्यों काट देता है। तुमको क्या लगता है, चूहा गुस्से में काटता है या तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है?
नहीं, चूहा इसीलिए काटता है कि उसका इंसीजर को अगर ग्राइंड नहीं करता रहेगा तो इंसीजर क्या होगा, इतना लंबा हो जाएगा, ऊपर नीचे बढ़ जाएगा, तो उसका माउथ को हमेशा के लिए स्टक कर देगा और माउथ ओपन नहीं हो पाएगा, तो स्टार्वेशन में बेचारा मर जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए तो ये चूहा का जो इंसीजर है, इसीलिए वो अपने इंसीजर को क्या करता है, ग्राइंड कर करके इसको साइज बना के रखता है, ठीक है ना। तो उसका भी इंसीजर बहुत अच्छा डेवलप करता है। अच्छा, कनाइन किसका डेवलप करता है? देखना, कनाइन जितना कार्निवोर एनिमल है, शेर वगैरह का देखना, इस साइड में ऐसा नीचे बड़ा वाला क्राउन वाला टीथ होता है, मतलब जो टीथ का जो क्राउन है बड़ा बड़ा रहता है, एक ऊपर एक नीचे, इधर भी एक नीचे ऊपर रहता है कैनाइन। सो कैनाइन डेवलप होता है जनरली कार्निवोर का, कार्निवोर एनिमल जो है उनको कैनाइन डेवलप होता है। अभी प्री मोलर मोलर तो सबका है, बिकॉज एवरीवन नीड टू ग्राइंड द फूड, तो इसलिए प्री मोलर मोलर सबका नॉर्मल रहेगा, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा टीथ के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डेंटल फॉर्मूला के बारे में देखेंगे। और एक डिवीजन टीथ का है, बट आई डोंट थिंक उतना नेसेसरी आपका नहीं है। वो जो मोलर प्री मोलर में जो कास्प होते हैं उसको लेके भी एक डिवीजन किया जाता है। चलो थोड़ा सा फिर भी उसको बता देते हैं ऊपर ऊपर में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो नहीं चाहिए आप लोग को, बट पता नहीं एम्स वगैरह में कभी कभी पूछ देता है, तो इस बार एम्स सब मिला के हो रहा है तो मैं भी कभी पूछ दिया। तो देखना, जो मोलर्स और प्री मोलर्स होता है, जो मोलर्स एंड प्री मोलर्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, एक ग्राइंडिंग सरफेस रहता है, ग्राइंडिंग सरफेस रहता है। ये जो ग्राइंडिंग सरफेस रहता है दैट इज मेड अप ऑफ कास्प्स। ऐसा गोल गोल ऐसे उठा हुआ रहेगा कास्प, जैसे होता है ना, जो मतलब जैसे ग्राइंडर के अंदर में एक ठो ब्लेड रहता है, वही घूमता है तब जाके ग्राइंड करता है चीज़ें। ये ऐसे मतलब ऐसे टीथ तो खाली ये घिसने से नहीं होगा, ये टीथ में कुछ कास्प रहेगा, ऊपर वाला में कुछ कास्प रहेगा, वो कास्प टू कास्प घिस के फिर ग्राइंड करता है। तो जो कास्प रहता है वो मेड ऑफ कास्प। ये कास्प को डिपेंड करके बहुत सारा टीथ होता है। मान लो एक टीथ हम लोग बोलते हैं, हम लोग का जो ह्यूमन में होता है उसको बोलते हैं बोनोडोंट, बोनोडोंट टाइप ऑफ टीथ। इसमें क्या होता है, राउंडेड कास्प होता है, ऐसा राउंडेड कास्प होता है। ये हो गया बोनोडोंट टाइप ऑफ टीथ। मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ये किस में मिलता है, एग्जाम्पल क्या है ये, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, इंक्लूडिंग मैन, ह्यूमन, ये बोनोडोंट टाइप ऑफ टीथ। कस्प अगर राउंडेड कस्प रहेगा तो बोनोडोंट बोलेंगे। कभी कभी क्या होता है, ये जो कस्प होता है ये क्या होता है ना, रिजेस जैसा रहता है, जैसे हम्स होता है ना, जैसे जाते हैं तो हम लोग हम्स मिलता है, ऐसे 1 2 3 4 5 हम्स रहता है, जो स्पीड ब्रेकर रहता है, उस तरह का रिजेस जैसा बनेगा। मतलब कैसा बनेगा ना, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे कास्प रहेगा, रिजेस जैसा कास्प रहेगा। सो इस टाइप का जो रहता है और रिजेस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लोफोडोंट। लोफोडोंट मतलब रिजेस रहेगा। तो इस टाइप का कास्प अगर रहेगा लोफोडोंट, ये कहाँ में मिलेगा, ये जनरली मिलता है हम लोग का, ये मिलेगा तुमको लोफोडोंट, लोफोडोंट तुमको मिलेगा, ये एलिफेंट में मिलता है एंड बहुत सारे कार्निवोर हार्बिवोर एनिमल्स में भी मिलता है। फिर तुम्हारा और एक आता है दैट इज कॉल्ड एज सिक्कोडोंट। इसमें क्या होगा ना, पॉइंटेड कास्प रहेगा, पॉइंटेड कास्प, ये रिजिड कास्प, ये पॉइंटेड कास्प रहेगा। ये तुम्हारा आता है, एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है, कार्निवोर्स जितने भी होते हैं ये लोग का सिक्कोडोंट होता है। एंड और एक होता है सेलेनोडोंट, ये भी एक टाइप का होता है। इसमें क्या होता है ना, क्रिसेंट टाइप का रहता है, आधा चांद जैसा कास्प रहेगा, इस तरह का कास्प रहेगा, इसको बोलते हैं क्रिसेंट, क्रिसेंट कास्प। ये तुमको मिलेगा जो ग्रेजिंग एनिमल्स होता है, जो ग्रेज करते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स, और यू कैन कॉल इट एज रूमिनेट्स। जो रूमिनेट्स रहेगा ये लोग को मिलेगा सेलेनोडोंट टाइप ऑफ टीथ।
सो ये हो गया डिपेंडिंग अपॉन द कस्प, इस तरह का डिवीजन भी कर सकते हैं हम लोग, बूनोडोंट, लोफोडोंट, सिकोडोंट एंड सेलेनोडोंट। एंड इस तरह का डिवीजन खाली किस में होता है, मोलर और प्री मोलर के लिए होता है। क्यों, इंसीजर और कैनाइन में तो तुम्हारा कस्प होता ही नहीं है, कोई सरफेस तो होता नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है ग्राइंड करने के लिए, इसलिए ये खाली मोलर प्री मोलर में ये डिवीजन होता है। ओके, ये हो गया। अभी हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये है कुछ कुछ बुक्स में और इसलिए बता दिया, जस्ट खाली नॉलेज के फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। लेकिन और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा इसमें से आता है वो है तुम्हारा डेंटल फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेंटल फॉर्मूला। दिस डेंटल फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेंटल फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं ना, जनरली इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ, और इट इज ए व्हाट, इट इज ए न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ half of the teeth of half of both upper and lower jaw, इस तरह से लिख सकते हैं। क्या है ये, इट इज ए न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ टीथ इन बोथ half of upper and lower jaws। ये क्या होता है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है अपर जॉ और लोअर जॉ में आधा, मतलब यहां से इधर यहां का लेंगे और यहां का लेंगे। इसलिए डेंटल फॉर्मूला में जो नंबर हम दिखाते हैं इसको अगर मल्टीप्लाई विथ 2 करेंगे तब जाके टोटल नंबर ऑफ टीथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, हम लोग क्या ले लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट इज ह्यूमन। ह्यूमन में हम लोग ले लेते हैं चाइल्ड को ले लेते हैं। चाइल्ड में जो टीथ आता है उसको मिल्क सेट बोलते हैं, मिल्क सेट, और डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं उसको, डेसिडुअस सेट। चाइल्ड का जो टीथ होता है उसको मिल्क सेट बोलते हैं या डेसिडुअस सेट बोलते हैं। उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या है उसका डेंटल फॉर्मूला ना, देखो ICPM, ये हमेशा हम लोग लिखते हैं। तो चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला जो है इसका है 2120 2120 सी। ये एक कंट्रोवर्शियल चीज है, जैसे यहां पे मैं 2120 लिखा, बहुत जगह में बहुत लोग लिखते हैं कैसे ICPM, इसको ऐसे लिखते हैं 2102 2102। तो करेक्ट तो दोनों है लेकिन सही रिप्रेजेंटेशन ये है। क्यों, देखो चाइल्ड में क्या होता है, प्रीमोलर सर मतलब मिल्क सेट में क्या होता है, जो मिल्क सेट होता है उसमें प्रीमोलर्स एब्सेंट्स होते हैं, प्रीमोलर्स एब्सेंट्स होते हैं। अगर प्रीमोलर एब्सेंट है तो ऑब्वियसली प्रीमोलर में 0 लिखेंगे हम लोग। 2 इंसीजर है, 2 कैनाइन है, 0 प्रीमोलर, 2 मोलर है, 2 इंसीजर 1 कैनाइन 0 2, ये ठीक है। पर मैं ये क्यों लिखा, मैं बोलूँगा ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखो चाइल्ड में क्या होता है 2 1 2 शून्य होता है, मतलब चाइल्ड में मोलर होता है लेकिन जो मोलर होता है वो प्री मोलर का जगह में होता है। चाइल्ड में जो मोलर होता है वो प्री मोलर का जगह में होता है। प्री मोलर मोलर कैसे करेंगे, एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है मोलर का और प्री मोलर का, इस हिसाब से वो मोलर हुआ। एनाटॉमिकली उसको देखोगे तो वो मोलर हुआ, लेकिन वो रहता कहाँ पे, प्री मोलर का जगह में रहता है। इसलिए हम लोग 2120, अगर हम देखेंगे बाहर से मेरे को ये 2 प्री मोलर का जगह में दिखेगा लेकिन वो 2 प्री मोलर है नहीं, ये 2 क्या है, मोलर है। तो इसलिए ये भी यही करेक्ट है। और ये भी लिख सकता है बिकॉज ये भी बहुत जगह में ये भी लिखा हुआ रहता है 2102, ठीक है। बट इतना याद रखो ये प्री मोलर सर एब्सेंट इन चाइल्ड। और क्या एब्सेंट होता है, थर्ड मोलर इज ऑल्सो एब्सेंट चाइल्ड में। देखो थर्ड मोलर है नहीं, 2 मोलर खाली है लास्ट में, तीसरा वाला है नहीं, और यहाँ पे भी ले लो 2 मोलर ही है। तो ये हो गया प्री मोलर एब्सेंट एंड थर्ड मोलर सर एब्सेंट। ये हो गया चाइल्ड का सेट। अभी चाइल्ड का सेट उनसे कितना हो गया, देखो एक जॉ में 2 1 3 2 5 5, लोअर जॉ में 5, तो 10 हो गया। तो ये टोटल अगर मिलाएंगे हम लोग तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा हो गया 10। लेकिन चाइल्ड का तो 10 नहीं है, चाइल्ड का तो 20 टीथ होता है। अरे बाबू ये हाफ सेट का हो गया,
हाफ सेट का 10 हो गया, तो हम लोग का कितना टीथ होता है, इंटू 2 कर दो, तो वी हैव 20 टीथ इन केस ऑफ चाइल्ड। ठीक है, अभी तुम लोग का ले लेते हैं। तुम लोग क्या हो, अभी टीनेजर्स हो, टीनेजर्स। तुम लोग का ले लेते हैं। तुम लोग का अभी क्या होगा, देखो ICPM, तुम लोग का अभी होगा 2122 मीन्स यू आर स्टिल वेटिंग फॉर योर थर्ड मोलर। तुम लोग का 2 इंसीजर होता है, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 2 मोलर। लोअर जॉ में भी 2 2122 हो गया। सो योर टोटल नंबर ऑफ टीथ 2 1 3 2 5 2 7 here also 7 plus 7 is equal to 14 and with 2 sides into 2 that is 28 टीथ होता है तुम लोग का। तुम लोग का कितना टीथ होता है, 28 टीथ होता है। ठीक है ना। तो कभी भी गुस्से में कोई फ्रेंड को तुम लोग मत बोलना कि एक मारूंगा तेरा 32 ही निकाल दूंगा, ये मत बोलना। क्या बोलना, अगर जरूरत पड़े तो बोलना नहीं चाहिए, पर अगर बोलना भी है, क्या बोलना है, एक मारूंगा तेरा 28 निकाल दूंगा। ठीक है ना, 32 मत बोलना, क्योंकि 32 है ही नहीं तुम लोग का, तुम लोग का 28 है। हाँ, मेरे को अगर मारने के लिए बोलोगे, कोई बोलेगा या तुम लोग बोलोगे तो मेरा 32 निकाल सकते हो। ठीक है ना। सो ये जो है टीनेजर्स में, अभी पूछता है टीनेजर्स में क्या एब्सेंट है ना, टीनेजर्स में क्या है ना, थर्ड मोलर इज एब्सेंट, थर्ड मोलर इज एब्सेंट। ठीक है, अभी आते हैं एडल्ट सेट में। एडल्ट सेट में अगर आते हो तो ये पूरा ICPM पूरा हो जाता है 2 1 2 3 2 1 2 3 दिख रहा है कि तो बाबू, जस्ट ए मोमेंट, थोड़ा सा छुप जा रहा है, तो हम लोग इसको यहां लिखते हैं। ICPM 2 1 2 3 2 1 2 3, इसका मतलब ये हो गया 2 3 5 8, दिस इज ऑल्सो 8, प्लस होगा 16 इंटू 2 32 टीथ, हो गया 32। तो अगर ICPM देखो, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, तो ये हो गया 32 नंबर ऑफ टीथ, तो ये हो गया हम लोग का 32। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टीथ। देखो अभी बोलोगे सर इतना टाइम क्या टीथ के लिए आप लिए पढ़ा है, बिकॉज बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे बताया, और क्वेश्चन भी उसका जो है क्या है, वही सेल के बारे में पूछेगा, डेंटाइन ये सब के बारे में पूछेगा, या टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पूछेगा, थेकोडोन डाइफेडोन वो सब। ये लोफोडोन बुनोडोन नहीं पूछा अभी तक, तो नहीं पूछा है, बट ये थेकोडोन एक्रोडोन ये सब चीज़ पूछेगा। या फिर तुमको इसमें से पूछेगा डेंटल फार्मूला में, डेंटल फार्मूला एक दे सकता है तुमको, कौन सा चूज करो ये बोल पूछ सकता है, उसको चूज करना है। या फिर उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा टीथ किसका एब्सेंट है, मान लो मिल्क सेट में क्या एब्सेंट है, मान लो तुम्हारा टीन एज में क्या एब्सेंट है, कौन सा टीथ लेफ्ट में आता है, एंड कौन सा टीथ को वेस्टिजियल टीथ बोलते हैं। ये जो थर्ड मोलर है, याद रखना और एक चीज, जो थर्ड मोलर होता है ये वेस्टिजियल टीथ होता है। थर्ड मोलर जो होता है ये वेस्टिजियल टीथ होता है, मतलब कोई काम नहीं इसका, उल्टा प्रॉब्लम करता है कभी कभी, तो इसको क्या करते हैं हम लोग अपलोड कर देते हैं, कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है। एडजेसेंट जो टीथ रहता है मोलर का, उसको डिके कर देता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, थर्ड मोलर जो होता है वो पूरा नहीं निकलता, थोड़ा सा निकलता है, पूरा भी नहीं निकलता है। जितना उसका क्राउन होता है वो सबसे छोटा क्राउन होता है थर्ड मोलर का, ठीक है ना। सो दीज आर ऑल अबाउट द टीथ। सो इसको ध्यान से देखो, ध्यान से बढ़िया से पढ़ो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एनालाइज करके देखो, सब कुछ ठीक से तुम लोग को दिखेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे टर्म, ठीक है। थैंक यू।